فرما رہا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. یہ دیکھو آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، یعنی پانی کا تو وہ طوفان جو آیا قوم نوح پر، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو مددگار نہ پائے. معلوم ہوا کہ اگر اتنے بڑے بڑے صالحین کو بھی اگر شرک کی جو ہے نا بنا دی جائے نا، ان کے اوپر ان کے پاس لگ کر، ان کو یہ سمجھ کر ان کی عبادت، ان سے یہ وغیرہ وغیرہ ساری رسومات اور یہ جو شرک کے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر بھی اللہ جو ہے نا رعایت نہیں دے، اس وجہ سے کہ یہ بڑے مخلوق ہیں، بڑے ہیں. یہ مراد ہے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا. یہ مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ یہ لوگ جو ہے نا یہ چمار ہیں الیاذ باللہ، یہ بالکل مراد نہیں ہے. میں نے مضمون بھی آپ کو سامنے دکھا دیا کہ دیکھو مصنف خود یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے بڑا ہے یہ کہ اپنے بڑوں کی بھی ادبی باقاعدہ الفاظ ہیں، اور سوائے اس کے بڑا اب مجھے بات کرنا دیں، ٹھیک ہے؟ اب سن لیا. اب جی انہوں نے مقدمہ پڑھنے کی کوشش تو کی، اب ٹھہر جائیں، اب ٹھہر جائیں جی ٹھیک ہے. اب طیب صاحب دوبارہ توجہ کیجئے گا، اب توجہ کیجئے گا، میری بات میری آخری ٹرم ہے، لاسٹ ٹرم میری ہے. یار ایک منٹ صرف نا، ایک منٹ فیضان بھائی، فیضان بھائی ایک منٹ صرف، فیضان بھائی وہ جا رہے ہیں ایک منٹ، نہیں یہ بات پوری کر کے جائے گا. بھائی میری بات سن لو، یہ بات کا جواب لے لو. اسے کہ چھوٹے بڑے کی تخصیص یہاں پر خود کی ہے اس نے، یہ ہے نا مخلوق میں چھوٹا ہو یا بڑا، یہ اس نے خود تخصیص کی ہے. کہتا ہے یعنی اللہ کو بڑا مالک سمجھتے ہیں اور اس سے چھوٹے اور مالک ٹھہراتے ہیں. مولویوں اور درویشوں کو اس بات کا ان کو حکم نہیں ہوا اور اس سے ان پر شرک ثابت ہوتا ہے، اور وہ نرالا ہی اس کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا نہ برابر کا، بلکہ چھوٹے بڑے سب اس کے بندے عاجز ہیں. ان کو بات کر رہے ہیں، پھر انہوں نے جانا ہے نا، ایک منٹ ان کو آخری بات اپنی کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مائک میرا کیوں میوٹ کرتے ہو یار؟ بھائی مکمل ہونے دو. نہیں اس نے جواب دیا، جواب لے کر جائے گا، صبر و تحمل سے کام لینا جواب لے کر جائے گا. فیضان بھائی جائے گا، وہ جواب دے کے کدھر جائے گا؟ اگر نہیں جائے گا تو دوسرے بندے سارے بیٹھے ہیں نا ادھر، جواب دیں گے. جی دیکھیں میں نے اپنا مقدمہ قرآن پاک کی آیات سے اور شاہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز جی آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے. میں نے اپنا مقدمہ دیکھو آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ شاہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں یہ دجل کر رہے ہیں، اور ہمارے اوپر آپ کے سامنے ان لوگوں نے اس نے آپ لوگوں کے سامنے آپ نے خود اقرار کیا کہ وہ الفاظ میں نے نہیں کہے تھے، اس نے خود میری طرف وہ جوڑ دیے ہیں. بار بار اس کا میں نے احتجاج کیا، بار بار آپ لوگوں کے سامنے میں نے واضح کر دیا کہ یہ دیکھو نا یہ کر رہے ہیں. تو جو بندہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر، آپ لوگوں کے بالکل سامنے بیٹھ کر جو بندہ میری باتوں کو توڑ مروڑ کر وہ پیش کر رہا ہے اور میرے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، وہ بندہ شاہ شہید کے اوپر نہیں کرے گا تو کیا ہے؟ پھر یہ بار بار ایک بات کر رہا ہے کہ بڑے انہوں نے اپنی حجت تمام کر دی نا پہلے، تو اب ان کی بات مکمل ہو گئی ہے. اب انہیں کہ اب سن لیں، ان کی بات مکمل ہو گئی ہے. کرتے رہو چلے جاؤ، تم نے بھاگنا ہی ہے. اب تمہیں پتا ہے نا تمہاری چھوٹے بڑے کی تخصیص نکلنے لگی، اب تم بھاگو گے، پتا ہے مجھے، یہ دیکھو اب بھاگو گے. چلو اب سن لو، اب میری باری ہے. میں بھاگ رہا ہوں. کہتا ہے جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، سو ان مانوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے، اور ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا. نہیں یار میری بات ہونے دو، ادھر سارے بندے بیٹھے نہیں، ایک منٹ، ادھر سارے بندے بیٹھے ہیں نا، جس سے بات کرنی ہے وہ چلا جائے گا. اگر اس نے بھاگنا ہوتا تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے تو اب بھاگ رہے ہیں نا، مجھے پتا ہے، میں اس کی تخصیص دکھا رہا ہوں، 5 منٹ دو میں تخصیص دکھا رہا ہوں، پھر اس سے دینا مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا، اور ہر مجتہد اپنے تابعوں کا، اور ہر بزرگ اپنے مریدوں کا، ہر عالم اپنے شاگردوں کا. بڑے لوگ یار میں کیا کروں آپ قائم ہوتے. فیضان صاحب کیا ہو گیا یار؟ 1 منٹ رک جائے خدا کے لیے یار، تم بار بار مجھے میوٹ کرتے ہو، اس سے کیوں نہیں کرتے؟ او یار وہ آخری بات کر کے پھر وہ جا رہا ہے، اسے جانے لو، پھر یہ کرسی بیٹھا نہیں سے بات نہیں، کر ایسا رہے نہیں ہوتا ہے. ایسا میں تخصیص ثابت کر رہا ہوں، تخصیص سنو اس کی.
तखसीस साबित करें, अव्वल अंबिया और औलिया बड़े की तखसीस लोग खुद की जी बड़े लोग अव्वल के हुक्म पर कायम होते हैं और छोटे अपने छोटों को पीछे सिखाते हैं, पीछे छोटे को सिखाते हैं। बड़े अंबिया, छोटे पीछे अपनी उम्मत के लोग। ये है वो, यही वो इबारत है। बड़ा मखलूक बड़ा और छोटा। आगे उसने उसकी तखसीस भी कर दी है कि बड़े अंबिया कराम हैं जो पीछे छोड़ते हैं, वो उनके लोग हैं, वो उनके लोग हैं जो पीछे छोड़ते हैं, अपने छोटों को छोड़ते हैं। बड़े जो हैं वो अंबिया हैं, यही उन्होंने गुस्ताखी की है। हर मखलूक छोटा बड़ा, छोटे बड़े यार की खुदा तखसीस यहाँ पर कर दी है। ओ भाई की हो गया जब मारी चलियो यार, गल सुन लिया करो एक ਉਹਨੂੰ दूसरे क्यों की। नहीं चुप करांदा? तो ਉਹਨੂੰ क्यों नहीं चुप करांदा? 10 मिनट वो मसला ये है कि मैं आपको मेरा एक माइक बात बार म्यूट बताऊं, करके एक उससे मिनट क्यों नहीं फैजान चुप भाई, कराते? मैं हक की बात करूंगा। जो टाइम है ना वो फैजान भाई का अगर वो देना चाहते हैं तो ठीक है। मैं नहीं देना चाहता भाई, मैं टाइम नहीं देना चाहता। मेरी अपनी बात मुकम्मल होने दो, मैं उससे क्यों टाइम दूं? तो ये दूसरी इबारत क्या अगर अपनी टाइम में कर लिया करो ना। मैं उनकी बात के दरमियान बोलता ही नहीं। ये दूसरी बात नहीं, चुप करके सुनेगा मेरी बात। यहाँ पर छोटे बड़े की तखसीस की है, छोटे बड़े की तखसीस किया है। जैसा हर कौम का चौधरी और गांव का जमींदार, सो इन मानों को हर पैगंबर अपनी उम्मत का सरदार है, और हर इमाम अपने वक़्त के लोगों का, हर मुजतहिद अपने ताबों का, हर बुजुर्ग अपने मुरीदों का, और हर आलिम अपने शागिर्दों का। कि बड़े लोग बड़ा या छोटा, बड़े लोग अव्वल के एक मिनट हुक्म पर उन्हें बात कायम होते करने हैं, अव्वल के हुक्म पर आप कायम होते हैं और पीछे अपने छोटों को सिखाते हैं। हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, वो अल्लाह की शान के आगे चुमार से भी जलील है। यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पर बड़े जो इन्होंने मुराद ली है अल्लाह के नबी मुराद लिए, छोटे जो मुराद लिए वो पीछे आलिम जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटे लोग हैं पढ़ने वाले, उन्हें मुराद लिया इन्होंने। यहाँ से ये बात साबित हो चुकी है। अब जो इन्होंने कहा जी शुरू से मुकदमा समझना पड़ेगा, या आपको शुरू से इसका मुकदमा समझाते हैं, इसी के दो पीछे अजय कहते हैं अल्लाह को बड़ा मालिक समझते हैं और उससे छोटे और मालिक ठहराते हैं। मौलवियों और दरवेशों को तखसीस हो गई, छोटों की तखसीस हो गई, सो उस बात का उनको हुक्म नहीं हुआ, और इससे इन पर शिरक साबित होता है, और वो निराला ही, उसका शरीक कोई नहीं हो सकता, ना छोटा ना बड़ा, ना छोटा ना बराबर, ना छोटा ना बराबर, बल्कि सब छोटे। छोटे कौन लोग थे? कहते जी वो तो उनकी बात हुई थी। ऐ सुनो जरा, सब छोटे उसके बंदे आजिज हैं और इज्ज में बराबर हैं। सब छोटे कौन? अल्लाह के वली दरवेश, ये सब छोटे हैं। बड़े कौन? इस इबारत के मुताबिक हर पैगंबर। यहाँ से शाह इस्माइल की अपनी इबारतों से ये साबित हो गया कि इसने जो गुस्ताखी की है वो अल्लाह के नबियों की भी गुस्ताखी की है, अल्लाह के औलिया की भी उसने गुस्ताखी की है, और तौहीद का लेबल लगाकर तौहीद की आड़ में छुपकर उन सब की तौहीन करके गया अपनी इस इबारत के अंदर। और बिफज़ल ताला हमने इस इबारत को साबित कर दिया है, इन दोनों इबारतों को उसके मुकदमे से साबित किया। चुप करके सुनो, क्यों बार बार बोलते दरमियान में? नहीं सुनना, बस चुप करके बैठो, बात करने दे। चुप करके बैठो। नहीं चुप यार, अभी उनकी टर्न में मैं क्या करूं फिर? चुप करके बैठो, बात सुनो, हौसला करो, उन्हें मौका ना दूं। चुप। हाँ अब सुने मेरी बात सुने, दरमियान में बोलेगा, मुझे पता है बोलेगा क्योंकि यहाँ पर इनकी जो है वो साबित हो चुकी है कि बड़ा बंदा कौन था। बड़े को इन्होंने कह दिया जी हर उम्मत, हर पैगंबर अपनी उम्मत का बड़ा है। चुप करोगे कि नहीं? चुप करोगे? नहीं चुप करो, चुप करके बैठो। यहाँ पर इसने कहा हर बड़ा और छोटा। बड़ा और छोटा कौन है? बड़ा और छोटा कौन है? मैं बड़े और छोटे की तखसीस दिखा रहा हूँ। इसे तो ये भी नहीं पता कि इबादत करते कैसे हैं, इसे तो ये भी नहीं पता। आया जी मैं मुफ्ती, मेरे वर्ग मुफ्ती नहीं रखना। नहीं, चुप करके सुनेगा, चुप करके सुनेगा। वो बात मुकम्मल करेगा तो बाद में हम बोलेंगे ना, हम बीच में शुरू हो जाए। अब इसकी टर्म है यार, मुकम्मल होगी बात मेरी, मुकम्मल होगी फिर बोलेगा। ये बार बार बोल रहा है, अब ये बातों से भाग रहा है, पता मुझे इसका। मैंने दिखाया, इनकी किताब से दिखाया कि जो छोटे बड़े की तखसीस थी ना, कि मखलूक में छोटा हो या बड़ा, इसने कहा जी उससे अंबिया उलिया मुराद नहीं है छोटे और बड़े से। तो मैंने इसकी किताब से ही उनकी तखसीस दिखाई कि छोटे जो थे उनसे मुराद इन्होंने लिया अल्लाह के दरवेशों को, अल्लाह के जो बुजुर्ग बंदे थे उनको, और जो बड़े थे वहां से इन्होंने मुराद लिया अल्लाह के नबियों को। जब अल्लाह के नबियों और दरवेशों को जब इन्होंने मुराद लिया तो ये इबारत इंतहाई गुस्ताखाना और कुफरिया इबारत है।
اور اس کا یہ لوگ دفاع کر رہے ہیں نہیں جی شاہ اسماعیل نے صحیح کہا ہے، تو اس لحاظ سے یہ لوگ بھی کافر ٹھہرتے ہیں، اور ہم نے ان کی کتاب سے مقدمہ ثابت کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طیب صاحب ویسے نا یہ انصاف نہیں کہ جب فیضان بھائی بات کر رہے تھے تو ہے یا نہیں ہے طیب بھائی ہمارے باری ہے یا نہیں ہے؟ اظہر شاہ بھائی مائک میوٹ کر لیں، اظہر شاہ بھائی مائک کسی کی میوٹ کر باری لیں۔ نہیں ہے، زندہ باد، زندہ باد فیضان بھائی، زندہ مفتی باد۔ صاحب، مفتی کہ کہیں کی عبارت کاٹ کر کہیں پر جوڑ دو، اور ان تینوں عبارتوں کو وہی کام آپ کے سامنے اس بندے نے کیا، آپ نے خود دیکھ لیا۔ جو ان کے بڑے ان کو سکھا گئے ہیں وہی کام ہی آپ کے سامنے شاہ صاحب گستاخی نہ کرے۔ الزام تراشیاں اور عبارتوں کو ایک جگہ سے کاٹنا، ایک جگہ کی باتیں دوسری جگہ پر فٹ کرنا، کوئی ان بریلیوں سے سیکھے۔ اللہ کی پناہ، جو ان کے بڑے کر رہے ہیں ان کے چھوٹے وہی کر رہے ہیں۔ ہر درخت جو ہے نا اپنے میوے سے سمجھو پہچانا جاتا ہے، میوہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے قرآن کی آیت سے دکھا دیا کہ دیکھو اگر تم یہاں پر بڑے اور چھوٹے کی بات کر رہے ہو تو اسی عبارت سے یہ بات صاف کر دو۔ اس بیچارے کو وہاں سے کچھ بھی نہ ملا تو یہ ادھر ادھر کی باتوں کو لے کر، ابھی جب میں گھر سے باہر چلا گیا نا، اس کو یہ اس وقت اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اب جب اس کو پتہ چلا نا کہ میں کمپیوٹر کے سامنے نہیں ہوں تو یہ اب اس کو یہ دجل کر رہا ہے، حالانکہ جب میں کمپیوٹر کے سامنے تھا پچھلے 3 گھنٹے سے اس نے یہ بات پہلے پیش نہیں کی۔ اس کو پہلے پیش کرنی چاہیے تھی نا، تاکہ اس کا میں جواب دیتا۔ اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں تو چونکہ اپنے بچوں کو ڈراپ کر رہا ہوں، اب اس کے سامنے کمپیوٹر نہیں ہے تو میں کچھ بھی کہہ دوں گا اور مقدمہ جیت جاؤں گا۔ ایسے مقدمے نہیں جیتے جاتے، ایسے نہیں جیتے جاتے۔ تم مجھے ماں باپ کی ننگی ننگی گالیاں دے چکے ہو، میں اس کا آپ کو کوئی الزامی جواب نہیں دے چکا۔ میں نے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور آپ کو قرآن کی آیتوں سے یہ بات میں نے قرآن کی نص سے ظاہر کی ہے۔ میں نے کہا دیکھو اللہ نے اس میں کسی بڑے چھوٹے کی جو ہے نا تمیز نہیں رکھی، اللہ نے سب کو کہا۔ پیغمبروں کی میں نے مثالیں دی، پھر میں نے آپ کو بڑے چھوٹے کی بار بار یہ تشریح سمجھائی۔ قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت میں نے لگائی، دیکھو کہ وہاں پر اللہ نے دونوں چیزوں کو ذکر کیا، وہ لوگ اور جن کی عبادت کی جاتی ہے، دونوں۔ دیکھو مثال سے سمجھو، ایک بت پرست ہے، ہندو ہے، وہ مورتی کو پوج رہا ہے، تو اللہ نے دونوں کو ذکر کیا کہ یہ بھی اور یہ جو مورتی ہے، یہ مورتی بھی جہنم میں جائے گی، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میں نے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ میں نے کہا اگر تم کہتے ہو کہ اس میں یہ ہر چھوٹے بڑے میں سب آ گئے، اس میں نبی وغیرہ بھی آ گئے، اگرچہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ شرک کے زمرے میں بات ہو رہی ہے اللہ کے بندے، یہ بات پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہو رہی اللہ کے بندے، یہ شرک کے زمرے میں کوئی 50 کروڑ بار یہ بات اس کو سمجھا چکا ہوں، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ رہا تھا، تو میں نے سورہ انبیاء کی آیت اس کے سامنے لگائی کہ یہ اگر تمہارا مطالبہ ہے نا کہ اس میں تم بڑے اور چھوٹے کی تفریق جو ہے نا، تو اس میں ساری مخلوق میں بڑے اور چھوٹے آ گئے، یہ بار بار یہی ایک مطالبہ کر رہا ہے نا، اور ادھر ادھر کی عبارتوں کے پیچھے دوڑ دھوپ رہا ہے، حالانکہ اس کا مقدمہ پہلی عبارت پر ہے، شاہ شہید کی پہلی عبارت کے اوپر ہے۔ یہ اس عبارت سے اب بھاگ گیا تیسری کی طرف، پھر یہ دوبارہ آیا، یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بڑے چھوٹی کی تصریح ہے، اور وہ تصریح اس عبارت سے نہیں دکھا رہا، اس کے لیے اوپر نیچے ادھر ادھر کی دوڑیں چلانگے مار رہا ہے۔ یہ چلانگے ہمارے سامنے یہ تمہاری چلانگے نہیں چلی گی۔ میں نے اس کے پہلے آپ کو قرآن کی آیت دکھائی تھی۔ شاہ شہید کو چھوڑو، میں نے کہا اگر تم اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہو کہ اس میں سارے نبی اور رسول آ گئے، تو یہ بھائی میری بات کو غور سے سننا، یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر مخلوق میں سارے نبی سارے اولیاء آ گئے، یہ کہہ رہا ہے نا، بار بار کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ ایک منٹ دیکھو، یہ بھائی فیصلہ کن بات ہے، اللہ کے حضور ہم سب نے جواب دینا ہے نا۔ اگر یہ کہتا ہے کہ ہر مخلوق جو اصل عبارت اس نے پیش کی تھی اس کے اوپر بات کریں گے، ہر مخلوق سے یہ استدلال کر رہا ہے کہ اس میں نبی بھی آ گئے اور اولیاء بھی آ گئے،
यही कह रहे हैं ना, बार बार यही एक मुकदमा है इसका ना, बाकी तो आपने सुनी है। नहीं मैं सही से मैं समझा दूं आपको हर मखलूक नहीं अभी छोटा हो या बड़ा। फैजान भाई अभी आप चलें नहीं बोले। ठीक है। देखिए इसने कहा हर मखलूक, और ये दो लफ्ज ये कह रहे हैं कि इसमें अनबिया भी आ गए और औलिया भी आ गए। इसका मुकदमा इन्हीं दो हरफों के ऊपर है। ये कह रहा है कि हर मखलूक में सारे अनबिया भी आ गए और औलिया भी आ गए। मैंने इसको ये इबारत 5-6 तरह समझाई, कुरान की आयतें दिखाई, लेकिन मैंने इसके ऊपर फिर एक इल्ज़ामी सवाल किया कि अगर तुम ये समझते हो कि हर मखलूक में सारे अनबिया और औलिया आ गए, ये भी मखलूक है ना, तो फिर मैंने इसके ऊपर सवाल किया सूरह अनबिया की आयत का कि अल्लाह ने फरमाया कि जिनकी परस्तिश तुम करते हो ना, वो भी और तुम भी, दोनों तुम जहन्नम में जाओगे। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं फरमाया तैयब भाई? अब देखो मैंने इसको मुकदमा बनाकर कहा कि देखो ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम के साथ शिरक कर रहे हैं ना, के नाम पर अल्लाह के साथ शिरक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ईसा अलैहिस्सलाम को बुनियाद बनाकर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल भाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जी। अब मैंने इसके ऊपर इल्जामी सवाल रखा, इसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हिम्मत करे उसका ये जवाब दे, अल्लाह के लिए ये जवाब इससे ले लो। इसको कहो कि ये जो कुरान की आयत है इसमें आप ईसा अलैहिस्सलाम को भी अभी जहन्नम में फेंकेंगे या उसका इस्तिस्ना करेंगे आप? ये उस आयत का जवाब, ये 10वीं बार मैं इससे पूछ रहा हूं, ये उसका जवाब नहीं दे रहा, इधर उधर भाग रहा है। या तो कहे कि कुरान की आयत के ऊपर हमारा ईमान है, ईसाइयों को भी अल्लाह जहन्नम में फेंकेगा, ये कहे। ये मेरा सवाल है, इसका जवाब इससे ले कर देना। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इससे पूछें कि ये अल्लाह ने बताया है कि तुम और मेरा भी सवाल ले लीजिएगा, वो अंबिया वाला ना, अंबिया वाला जो है ना, वो सॉरी औलिया वाला, वो मेरा सवाल ले लीजिएगा, उसका जवाब ले लीजिएगा। जी वो शाह साहब देंगे। ये इंसाफ नहीं है। इसने मेरे उन किसी भी सवाल का, कोई किसी आयत का इसने मुझे जवाब नहीं दिया। मुफ्ती मुबशिर के ऊपर मैंने इल्जाम लगा जो ना इनकी वो की कि सरी कौल में कोई तावील नहीं है, इसने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं दोबारा मुतालबा कर रहा हूं इसे, अगर ये कहता है कि हर मखलूक इसमें सारे अनबिया भी आ गए, सारे औलिया भी आ गए। यहूदियों ने कुरान पाक में है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया कि नहीं बनाया, शिरक हुआ कि नहीं हुआ। अब यहूदी इस जुर्म की वजह से, देखो अल्लाह कह रहा है ना कि वो जहन्नम में जाएंगे। अब अल्लाह ने सूरह अनबिया में कहा कि जो ये शिरक कर रहे हैं और जिन चीजों की वजह से कर रहे हैं वो सारे जहन्नम में जाएंगे। तो ये माने कि उज़ैर अलैहिस्सलाम भी अपने इस दावे की बुनियाद पर हर मखलूक में आ गए कि नहीं आ गए? हर मखलूक में वो आ गए कि नहीं आ गए? ये जुर्रत करे और कहे कि यहूदी भी जाएंगे जहन्नम में और उज़ैर अलैहिस्सलाम भी जहन्नम में जाएंगे, जुर्रत करे। ईसाइयों के बारे में मैंने ये, क्योंकि वो भी हर मखलूक में आ गए कि नहीं आ गए? अल्लाह ने किसी की तखसीस नहीं की। सूरह अनबिया की आयत आपके सामने है। अल्लाह ने कहा तुम भी और जिनको तुम माबूद बनाते हो। मैंने इसके ऊपर ये इल्जामी सवाल बार बार मुख्तलिफ जहतों से दोहराया है, इसकी हिम्मत नहीं हो रही कि उसका जवाब दे। मैंने कहा ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को बुनियाद बनाकर शिरक किया ना, अब ईसाई भी जहन्नम में जाएंगे। और ये जुर्रत करे कि कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम भी, क्योंकि कुरान की आयत आम है, ये उसकी तरफ नहीं आ रहा। मुफ्ती मुबशिर की बात मैंने की, ये उसकी तरफ नहीं आ रहा। वहां पर ये तावील दे के आपने खुद अपने जो है ना अल्फाज के साथ ये बात कही कि देखो इसने तावील दे दी। अजीब बात है शाह साहब, उन्होंने वो आप हर मखलूक, शाह साहब उन्होंने वो भी इल्जामी जवाब फिर दिया ना, फिर उस पर भी फतवा लगता है जो उन्होंने इबारत पेश की है। नहीं दिया। बात सुन ले। हर मखलूक, अगर ये कुरान की उस आयत में इस्तिस्ना ईसा अलैहिस्सलाम और उज़ैर अलैहिस्सलाम का करेंगे, और जैसा कि ये करते हैं, हम इनकी तरफ बददियानत नहीं है, ये करते हैं ना, ये कहते हैं कि आयत का ये मतलब नहीं है, अगर इसका आम मफहूम लेंगे इसका ये मतलब नहीं बनता। ये खुद भी कहते हैं, ये मानते हैं। अगर उधर इस्तिस्ना दिया जाए, अगर इनका मैं सवाल ले लूं, अगर इनका ये जो मुकदमा है इसको 1 मिनट के लिए मैं ले भी लूं, तो कुरान की आयत के ऊपर ये फिर फतवा लगाएं या नहीं लगाते? अगर इस्तिस्ना देते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, उज़ैर अलैहिस्सलाम को, तो फिर इधर भी इस्तिस्ना ये क्यों नहीं देते? बुजुर्गों को इस्तिस्ना ये क्यों नहीं देते? क्योंकि ये अजीब बात है कि उधर तो आप इस्तिस्ना दो और इधर इस्तिस्ना भूल जाओ। उसूल एक तरह होता है तैयब भाई, ये नहीं है कि उधर आप इस्तिस्ना दे रहे हैं, इधर आप इस्तिस्ना नहीं दे रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये अजीब मंतिक है।
कि उधर ये ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि ईसाई देखो यहूदी और ईसाइयों के हवाले से अल्लाह ने यही बात की है ना, ये शिर्क के हवाले से। उधर इस्तिस्ना है कि ईसा अलैहिस्सलाम को हम नहीं भेजेंगे जहन्नम, इसका ये जवाब नहीं दे रहे। या तो इस्तिस्ना दो उधर जैसे कि तुम देते हो कि इस आयत में मुराद ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, ना उज़ैर अलैहिस्सलाम है। यहाँ पर इस्तिस्ना इनका ये शोर मचाते हैं, ये इस्तिस्ना दे रहे हैं, लेकिन शाह शहीद के साथ बोगज़ हैं उनको इस्तिस्ना। अगर मैं इनका मुकदमा मानूं भी, अगर मैं इनका मुकदमा मानूं, मैंने तो वाज़ेह किया ना बार बार कि मुकदमा है ही नहीं। और ये जो है ना, ये 2-3 चीज़ों को मिला कर एक इबारत बनाना और फिर उससे ये कहें कि देखो यहाँ पर ये तखसीस है तो मैं दूसरी जगह से वो निकाल ले लेता हूँ, ये बातें नहीं चलती। ये हुसामुल हरमैन में आप लोगों ने ये जो दज्जल और शैतानत की है ना, वो यहाँ पर नहीं चलेगी कि बात कहीं की हो, काट के कहीं पर एक मुसलसल इबारत बनाओ और अपने मफहूम और मजमून जो है ना जोड़ तोड़ कर वो जो है ना हमारे सामने प्रेजेंट करो। आप दूसरी इबारत की तरफ गए, यही आपकी हार है, क्योंकि इस इबारत पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान की आयतों से मैंने वाज़ेह किया कि उसूल का इतलाक सब के ऊपर होगा, उसूल का इतलाक सब के ऊपर। फिर इस पर सोने पर सुहागा, आपने बार बार सुना है, रिकॉर्डिंग्स में भी ये बात आई है कि इसने चिमार के लफ्ज़ को चुमार कहा, बार बार इसने चुमार कहा, चुमार। जिन लोगों की इल्मी हालत ये हो, इतनी पतली इल्मी हालत हो इनकी, ऐसे लोगों को अगर ये हम वो दे दें, रियायत दे दें कि ये इतने बड़े बड़े औलिया के, ये जो उर्दू सही से नहीं पढ़ सक रहे हैं, ये बेचारे जो पढ़ने पर कादिर नहीं है, चुमार 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 इसने कम अज कम 5-6 दफा कहा। जे लोग जिन लोगों को उर्दू पढ़नी नहीं आती, बेचारे उर्दू पढ़ नहीं सकते, वो इबारतों का मजमून मफहूम कैसे समझेंगे? मैं हैरान हूं। और जब इसको अंदाजा हो गया कि मैं तो अभी घर से बाहर निकला हूं, इसने दज्जल शैतान शुरू की, दूसरी जगह की बातें, तीसरी जगह की बातें ले लेकर अब ये कह रहे कि मैं इसको इधर फिट करूंगा, उसको इधर फिट करूंगा। हालांकि पिछले 2-3 घंटे से हम बैठे हैं, उस वक्त इसको हिम्मत नहीं हुई कि ये बातें उस वक्त ये प्रेजेंट करता। और मुफ्ती साहब को, मुफ्तरी को, इसने मुफ्ती साहब को जो है ना वो दे दी, रियायत दे दी और कहा देख लो अब ये तो हिंद कर रहा है, फिर हमारी तरफ से जवाब आया, इससे रोना है, ये से समझा लो अपनी ज़बान में। साहब शाह साहब ये बिल्कुल गलत बात है। नीचे कर रहे हैं, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया, लेकिन तैयारी में है ना, भागने की तैयारी में। नहीं, एक मिनट, एक उस्मान साहब, एक मिनट, शाह साहब ना करें ये इसको उस्मान को नीचे उतार दें, ये अभी झगड़ा प्रोड्यूस करेगा। नहीं झगड़ा करेगा, नहीं बोलेगा। उस्मान साहब चुप करें, उस्मान साहब खामोश रहे, नहीं शाह साहब नहीं बोलेगा। इसको नीचे उतार दें। मेरा भी अब कोई मेरी बारी आ गई, अब मुझे अब नीचे उतार दें, कलाम करने की इजाजत है। देखिए बात सुन लें, इस बंदे को नीचे उतार दो, इन लड़कों को नीचे उतार दो। ये यहाँ पर जो है ना एक वो शुरू हो जाएगा, अब लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये भाई ये इंसान चलो यार नीचे बैठ, लड़ाई नहीं होती, बदतमीजी जब होती कोई नहीं यार, कोई नहीं, देखो ऊपर भी बैठे, चलो यार तुसी नीचे बैठ। अगर एतराज है ना, अल्लाह दे बंदे जो बंदा डिबेट कर रहा है, अगर ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਵੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। चल ठीक है, कर दे थੱਲੇ करते उधर, कोई रोला नहीं। ਉਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ इधर उधर की बातें नहीं चलेंगी, बाकी इधर उधर की, तो ये भाई बात सुन, बाकी इधर उधर की बातें नहीं चलेंगी। तो ये भाई बात सुन, देखिए अगर आप ये मुनाजरे हमारे करवाते हैं ना, तो ये भाई तो देखो आपको भी मुनसिफ मिजाजी की जो है ना बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा कि आप सिर्फ मुनाजरे के पोल देने के लिए तैयब भी गया आज। नहीं, एक मिनट फैजान भाई, जी देखो ऐसा नहीं चलेगा तैयब भाई, ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ मुनाजरे को तोल देने के लिए आप हमें बिठाए रखें और हम गले फाड़ के बोलें, और जो मुतालबा है जिसके ऊपर सारा मुकदमा है, उस मुकदमे के ऊपर आप दूसरे को वो नहीं कर रहे। देखिए मैंने कभी भी अपने पूरे 3 घंटे में आप देखें, मैं अपने दावे से हटा नहीं हूँ, कोई इधर उधर की इबारत मैंने पेश नहीं की। जो इन्होंने मुतालबा मुझसे किया है उसी के ऊपर आयतें भी दी हैं और उसी के ऊपर मैंने मुकदमा भी दिया है। आप इनको पाबंद करें कि हर मखलूक, ये 2 सवाल इसका जवाब ये देंगे इस टर्म में, बाकी कोई बात इनकी नहीं बने। अगर आप इनको रियायत देते हैं कि इधर उधर की करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने हमें वैसे बिठाए हैं, आप इसको जवाब देने के लिए पाबंद नहीं कर रहे हैं। देखिए 2 सवाल है मेरे। मेरी बात कैसे के जवाब दे दे वो औलिया वाली, फिर सीधे जवाब लेके दे ना। भाई 2 सवाल है, तो ये भाई 2 सवाल है। इन्होंने कहा था
कि जो सरी बात होना उसमें किसी भी किस्म की तावील की गुंजाइश नहीं। आपने खुद सुन लिया कि इसने और सूरतुल फातिहा में इसने गुंजाइश दे दी तावील की कि नहीं की, आप दोनों ने माना। मैंने इससे सिर्फ इतना मुतालबा किया कि चलो अगर काफिर नहीं कहते हो, चलो ये कहो कि मुफ्ती साहब ने ये गलत किया। ये मुफ्ती साहब को डिफेंड करने के लिए कुरान को छोड़ गए, हालांकि अपने उसूल को, आपने खुद माना कि इसने वहां पर मुफ्ती साहब को तावील दिया, हालांकि उसको नहीं देनी चाहिए, इनका अपना हुक्म था ना। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पर इधर उधर की जो बातें पेश की, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला की इबारत इन्होंने पेश की, हालांकि वो इसका जवाब नहीं था, दजल था। क्योंकि बात सुन लो, हाँ सुनी, म्यूट लगाओ, बात सुनो अल्लाह के बंदे। क्योंकि शाह शहीद रहमतुल्लाह ताला ने उससे पहले ये नहीं कहा था मुफ्ती साहब की तरह के हुक्म सरी में कोई तावील नहीं है। क्या शाह शहीद ने वहां पर इबारत में ये लिखा है, क्या नाम है तैयब भाई, उस इबारत में जो इसने पेश की थी उसमें शाह शहीद ने ये शाह साहब ने ये लिखा है, शाह अब्दुल अजीज साहब ने ये लिखा है कि हुक्म सरी में कोई तावील नहीं, उस इबारत में ये बात थी? तो जब नहीं है वो उस इबारत में तो नहीं लिखा, तो ये उसको बुनियाद नहीं बना सकता। शाह साहब वो इल्जामी जवाब के तौर पे कह रहे थे, इल्जाम, इसने कहा हुक्म सरी में कोई तावील नहीं चलेगी। इल्जामी मिल्जामी सब उड़ गए कि नहीं उड़ गए इससे? ये तो देखो, ये तो फिर कादियानी को भी ये इल्जामी फिर वो दो, क्योंकि फिर वो भी कहते हैं कि मैं तो ईसा अलैहिस्सलाम, मैं तो इल्जामी तौर पर गालियां दे रहा हूं, कहते हैं कि नहीं कहते कादियानी? ये इनको फिर वो तावील क्यों नहीं देते? ये फिर सारे मुल्हिदीन को भी तावील दें, जो अल्लाह को गालियां दे रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम तो वो कर रहे हैं। ये फिर सारे हिंदुओं को भी ये तावील दें, ये जो जितने बड़े बड़े पंडितों ने गालियां दी हैं उनको भी फिर तावील दे दें, वो भी इल्जामी तौर पर आपके ऊपर सवाल कर रहे हैं। ये कौन सा खुलिया कायदा है? ये तो एक ऐसा दरवाजा खोल रहे हैं कि अगर ये तावील किसी को भी आप देंगे फिर क्या होगा? ये तावील तो किसी को नहीं दी जा सकती। अगर आप ये कहते हैं कि ये इल्जामी तौर है, तो वो फिर वो तो दिन रात चीख रहे हैं, आपके सामने चीख रहे हैं, कादियानी आपके सामने चीख रहे हैं कि नहीं चीख रहे कि वो तो हम इल्जामी तौर पर ईसाइयों को वो बात कर रहे हैं, पंडित और उसको पादरियों को, वो कह रहे हैं कि मिर्जा कादियानी ने पादरियों को इल्जामी तौर, वो तो दिन रात चीख रहे हैं। फिर इनको चाहिए बरेलियों को कि उनको भी तावीलें दे दें। अगर मुफ्ती साहब को दे रहे हैं उसूल, तो फिर हर जगह है, दो। फिर अजीब बात है, मुल्हिदों को भी दो, दारियों को भी दो। जो लोग ये कर रहे हैं फिर वो सारा ये डोल पीटना शुरू कर लेंगे कि भाई इल्जामी तौर पर हम कह रहे हैं, इल्जामी तौर पर कह रहे हैं। फिर करो, मुजरे करो, फिर हम भी बगड़ा डालेंगे, ये भी बगड़ा डालेंगे। अजीब बात है। दूसरी बात, ये इनकी बात नहीं चलेगी। अब मेरी बारी आ भाई गई देखो, यार, इंसाफ से बात करो, सब्र कर लो, शाह साहब मौका देना, काफी टाइम आपने लिया आज, देखने में काफी ज्यादा टाइम ले लिया, ऐसा तो नहीं ना होता। अब इन्हें ना असल में वो आदत है कि अपने बंदों के अंदर बैठ के ना तकरीरें करती रहना। अब ठहर जाए, अब बात सुनना, वैसा ना करें, बैठ जाए, अब ठहर, चुप कर जाए। दूसरा मैंने आपको देखें बात बताई, मेरी स्क्रीन बड़ी कर दें, पहले मेरी स्क्रीन बड़ी कर दें, मैं सब अभी एक मिनट, फिजान भाई एक उसकी यार अभी टर्म है, आगे आपका जवाब देने, खवारिज बेफिक्र रहो। मैंने खवारिज, अब्दुल खवारिज ऐसा नाम नहीं रखा, मुतालबा किया है आपने। एक मिनट। अच्छा यार, मेरी स्क्रीन बड़ी कर दे हम चौधरी, बता दे ना, एक मिनट यार, रुक जो होना। चल ठीक है। हुन शाह साहब जिन्ना टाइम ले रहे हो, इन्ना टाइम लेना, बहुत ज्यादा टाइम ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੋਚ। नहीं अगर ਹੁਣ बोले थल्ले जाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, ओके। देखो भाई, मैं आपसे एक बार फिर दरखास्त कर रहा हूँ, दो बातें हैं, बिल्कुल मुकदमा साफ है। अल्लाह के लिए आप हमें बिठा मजबूर कर रहे हो ना कि हम इनके साथ, अगरचे मैं बच्चों को लेकर अभी देखो ना आया हूं, लेकिन फिर भी मैं बैठा हूं ताकि ये ना कहे कि ये दौड़ गया। अब जब मैं इतनी मजबूरी की हालत में भी यहाँ पर बैठ के इसके साथ बात कर रहा हूं, तो आपके ऊपर पाबंदी मेरी बनती है कि आप इसको इधर उधर जाने से रोकें और इसको दो बातों का जवाब दें। ये इल्जामी मिल्जामी का चक्कर नहीं चलेगा, क्योंकि ये इल्जामी उसूल पर आपको हर किसी को देना पड़ेगा, या तो दें या इनकार करें या मुफ्ती को भी लटकाएं। एक बात। दूसरी बात, हर मखलूक के एतबार से मैंने 5 बार वाज़ेह की है कि उस सूरह अनबिया की उस आयत का जवाब दें कि ईसाई और यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को ये हर मखलूक में मानते हैं कि नहीं मानते। या तो वाज़ेह करें कि वहाँ पर इन दो को इस्तिस्ना देंगे, और या वाज़ेह करें कि ये जो है ना, ये वहाँ पर इसके कायल हैं कि चूंकि अल्लाह ने फरमाया है कि इनके माबूदों समेत हम इनको जहन्नम में फेंक देंगे, तो फिर ये मान लें
کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو جہنم میں پھینکنے کے قائل ہیں.